हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? आई डॉक्टर गीतांजलि शर्मा वेलकम यू येट अगेन टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन इन बायोलॉजी only on Talking Textbook Quota Live, leaving no child behind. हम अपने सारे बच्चों को इक्वल प्लेस करते हैं, ठीक है, एंड सबके ऊपर इक्वली ध्यान देते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट दी प्लेटफॉर्म ऑफ टीटीवी। अब बच्चा लोग, most of you know about what this platform is actually all about. Lekin again, I get this privilege to talk back and again about talking textbooks, ठीक है, because बनता है यार, बहुत ज्यादा बनता है ऐसा, ठीक है। So yes, we get you prepared not only for your school examinations, but from class 6 to 10th, of course, right? But also for your ओलंपियाड, ठीक है। सब लोग सुनते रहते हैं ये ओलंपियाड, फलाना ओलंपियाड है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो बट दो ब्ला 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 ओलंपियाड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। बच्चों होते इंपॉर्टेंट हैं, एंड अगेन अगर हमें अपने एजुकेशन में, राइट, हमारे अचीवमेंट्स में, हमारी क्रेडेंशियल्स में थोड़ा सा एक स्टार ऐड करना है या फिर एक और प्लस मार्क ऐड करना है ना, so they really help you out, ठीक है, ठीक है। क्राउड से थोड़ा सा accentuate कर देते हैं आप, all right? So yes, that is what TTV is again for you guys, making you prepared for your Olympiads in classes 6, 7 and 8. And फिर उसके बाद आते हैं आपके तीन बड़े ही प्यारे प्यारे से एग्जामिनेशन, कौन से? NCST, NSEJF and PRMO. Like there are lot many of you guys are crazy for these examinations, isn't it? And then कुछ लोग हैं जिनको ऐसा होता है, चलो अभी हम स्कूल वाले एग्जामिनेशन फाइट कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो लेके ये चीज चलते हैं ना, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। So that is our motto is. So कुछ भी preparation हो, the platform of Talking Textbooks is always there with you guys, right? So now introducing the excellent team of Talking Textbooks, right? बच्चों लोग, most of you must be acquainted with these faces, जानते ही हो आप लोग, है ना, इतने प्यारे प्यारे beautiful faces, right? These all are your faculties. You're at the Talking Textbooks, all right? And then this is me, Dr. G, okay? मुझे बहुत प्यार से लोग डॉक्टर गीत बोलते हैं, they call me गीत actually because गीतांजलि थोड़ा सा लंबा नाम हो जाता है। However, I am in absolute love with my name, but then again, yes, this is my छोटू सा name and this is my छोटू सा introduction along for the students who do not know, all right? And जिनको पता भी है, मुझे तो इंट्रोड्यूस करने में उसको बड़ा मजा आता है, बाय गॉड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये है एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर यू गाइस, ओके। इससे समझ गए हो किसका आइकन होता है ये? भाई सोशल मीडिया तो सब लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, ठीक है, हाँ, सब लोग को बहुत अच्छे से आता है स्मार्टफोन यूज करना, राइट? आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सब लोग मतलब कुछ करते नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया के बारे में सारी नॉलेज सबको है। तो यहाँ पे now this is important when it comes to your Talking Textbooks का platform, guys. This is the Telegram handle of Talking Textbooks. Then can you see these links? ठीक है, क्लास 6 के लिए अलग, 7 के लिए अलग, 8 के लिए अलग, 9 के लिए और 10 के लिए अलग। यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या वो लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने का कष्ट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। So basically this is the Telegram handle of Talking Textbooks where you get to have a sneak peek in the material, okay, about the DPP's modules, what exactly is hidden into the treasure of Talking Textbooks for you guys, and you get a sample here, alright? And एक बार visit करोगे तो for sure you're gonna visit this as well, alright? So can you see this? This is www.talkingtextbooks.in and then यहाँ पे आपके लिए दो suitable packages हैं, okay? So बच्चों, I know that the sample material is pretty convincing. Actually उसको किसी के justification की need नहीं है. So once you visit it, you are definitely gonna visit this website as well. So this is the official website of Talking Textbooks where ये दो boxes देखते हो यहाँ पे, ठीक है? तो आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए ये दो बॉक्सेस प्रिपेयर्ड हैं, ऑलराइट? दिस वन, the red one and the purple one. So whatever suits you the best, whatever you feel like, okay, I'm gonna grab it, I wanna have it, okay. So यहाँ पे आता है मेरा काम, and that is the GS Live. Can you see this stupid? ठीक है, so you can just apply this code GS Live, ठीक है, this coupon code which is on my name, of course, Gitanjali Sharma, ठीक है। So yes, then you get a 30% instant discount over it, ठीक है। And then यहाँ पे ये जो मेथड है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट, ठीक है, सारे ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। So whatever you feel the best, आपके पेरेंट्स को जो अच्छा लगता है, whatever is
convenient for you guys. We've already made everything possible for you here on the platform of CTV. ठीक है, so that you don't face any inconvenience. So फटाफट से जाओ देख लो भाई क्या है, बिकॉज और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार आप रीड करोगे खुद को पता चल जाएगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव ऑलरेडी टेकन. फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट, just go and at least visit it. Okay, एक बार बोलते हैं ना हम लोग, एक बार एटलीस्ट देख लेते हैं, and then suddenly we get to know, okay, this was the treacherous part here. All right, so that is again what's going to happen with you guys again. So let's just move ahead again, moving to the cardinal promise of talking textbooks. What is there बच्चों? a promise to the self, जहाँ पे हम खुद से promise करते हैं कि I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ठीक है, चलो मैं आती हूँ यहाँ पे. मुझे पहले भी पता है कि मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है ना, है ना, है ना, all of you, right? Isn't it? So yes, but still, when we are making a promise to the self, है ना किडी? ठीक है, जैसे हम खुद को प्रॉमिस करते हैं, हम खुद से प्रॉमिस करते हैं, yes, that we are going to do it for ourselves, right? So this is all cardinal promise is all about. This is a ritual of CTV. ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है ना, खुद के लिए करना है, राइट? ठीक है, तो हम आगे बढ़े. चलो जी बढ़ते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे about, okay, just a moment बच्चों, just a moment, sorry, एक सेकंड रुकिएगा. Okay, yeah. Yes. सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है. एनीवे, चलो तब तक मैं आपको बता देती हूँ आज हम जो पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी मूवमेंट इन एनिमल्स. ऑलराइट, है ना. हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट दी मूवमेंट इन एनिमल्स, है ना. वी स्टडीड अबाउट इट, इजंट इट, है ना. हमने किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है देखा था कि कैसे कैसे तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं एनिमल्स में, राइट. ठीक है, तो ये हमने देखा था, है ना. ठीक है, कि राइट फ्रॉम सर्टेन माइक्रोब्स, राइट, उससे हमने स्नेक के, उसके अलावा फिश के, स्नेक के मूवमेंट्स के बारे में देखा था, है ना. बट आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? वी आर गोना स्टडी लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? लोकोमोशन इन द ह्यूमन बॉडी. ऑलराइट, ठीक है, यानी कि कैसे ह्यूमंस में लोकोमोशन होता है. लोकोमोशन क्या मतलब बच्चों? मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में बताया था, डिफरेंस क्या होता है, राइट. सो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई ह्यूमंस में कैसे होता है ना. ठीक है, अगेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं हाईलाइट करूंगी ही. ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट, ओके, अब देखो हम खुद को देखते हैं, हम लोग किससे चल रहे हैं? वी आर वॉकिंग ऑन आवर टू लेग्स, राइट. ठीक है, देन हम लोग अपने आर्म्स भी ऐसे मूव कर सकते हैं, isn't it? Then we can, if I'm coming forward, if I'm going backward, किसकी वजह से? हमारे लेग की वजह से. लेकिन उसके पीछे एग्जैक्टली क्या है हमारे, किस किस का मूवमेंट है बच्चों? एग्जैक्टली किस किस का मूवमेंट है? अगर हम लोग जनरल बेसिस पे बात करते हैं तो वो है हमारे बोन्स और हमारे मसल्स का. ठीक है, हमारे बोन्स और हमारे मसल्स का एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन, है ना, राइट. वी ऑल नो अबाउट इट, राइट. ठीक है, तो हमारे बोन्स और हमारे मसल्स का एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन, राइट. सो बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, यहाँ पे इसको लिख लो. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या? बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स का, ठीक है, क्या होता है? दीज आर योर एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर मूवमेंट. राइट इट डाउन कि कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों मूवमेंट के लिए? योर बोन्स, योर कार्टिलेज, ठीक है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. ऑलराइट, ठीक है, दिस इज एसेंशियल कंपोनेंट. लेकिन अगर हम जनरल टर्म से बात करते हैं तो बोन्स और मसल्स, ठीक है, उसका एक बेसिकली देयर इज अ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, देयर इज अ गुड कोऑर्डिनेशन. बट ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ठीक है, इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. अब बच्चों सी, व्हाई डू वी नीड टू मूव, व्हाई डू वी नीड टू लोकोमोट लाइक अदर एनिमल्स? अगेन हमें भी डिफेंस के लिए
फूड के लिए, शेल्टर के लिए, वाटर एंड पार्टनर्स के लिए क्या चाहिए होता है? मूवमेंट। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, आज हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। ठीक है, हड्डियां बहुत होती हैं सबके शरीर में, राइट, है ना? होती है कि नहीं होती है? ठीक है, सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर इज बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे ना स्केलेटन के बारे में। ठीक है, देखो कितनी सारी बोन्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में, कैन यू सी सो मेनी, हमारे आर्म्स में, हमारे चेस्ट में, स्टमक साइड पे, देन आपके लेग्स में, सर, खोपड़े में इतनी सारी हड्डियां होती है हमारे। ठीक है, तो इतनी सारी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो सी जब भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो ना इस तरीके से किसी चीज में, तो उसको डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, राइट? डिवाइड करके पढ़ोगे, ठीक है, या उसकी डिवाइड करके स्टडी करेंगे तो क्या होगा, हमें इजीली समझ में आएगा, है ना? है ना? है ना? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो इट्स गोना बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो जी, तो हमने क्या किया, इसको इजी बनाने के लिए हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड किया दो पार्ट। ठीक है, कौन से पार्ट बच्चों? पहला दिया एक्सियल स्केलेटन, लिख लो। तो बेसिकली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम क्या बच्चों? हमारा जो सिर्फ और सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, है ना? कौन सा? बोनी स्ट्रक्चर, लाइक वी स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम, है ना, जिसमें हम लोग सिर्फ नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो है, या जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ओनली दी बोन्स। ऑलराइट, अब उसको हमने इजी बनाने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन एंड दी appendicular, APPENDICULAR, राइट इट डाउन, इसको लिख लो। राइट इट डाउन बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने? ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने? टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना? 206, राइट डाउन, 206। ठीक है, अब वो 206 बोन्स जो है ना, वो कितने पार्ट्स में स्टडी करेंगे हम लोग? दो पार्ट्स में। कैसे? उनका डिवीजन हमने कितनों में किया? दो में, एक तो एक्सियल स्केलेटन एंड वन इज योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। आई होप यू गाइस हैव रिटन इट डाउन। अब देखो, एक्सियल स्केलेटन मतलब क्या बच्चों? अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब कि एज स्ट्रेट ट्रेस हमारी बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करते हैं द फर्स्ट। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, तो 4 पार्ट्स में हमारी बोन डिवाइड होती है। सबसे पहला स्कल, this part, ठीक है, then this is your first skull, then second is your vertebral column, can you see, यहां से, ठीक है, right from your neck to your hip bone, ठीक है, ये पूरा पीछे जो आपका पार्ट है ना, this is, जिसमें हम लोग सीधा खड़े हुए हैं, कौन सा? this part, ये पीछे जो होता है, that is your vertebral column, okay? तो देखो एक ही लाइन में है, यहाँ पे हमारा क्या है? सर है, बिल्कुल नीचे उसके साथ ज्वाइन हुई कौन सी है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो एक एक्सिस में आ गई। ठीक है, देन थर्ड इज योर स्टर्नम एंड योर फोर्थ इज योर रिब्स। स्टर्नम कहाँ होता है बच्चों? इस एरिया पे, ओके, यहाँ पे, ओके, हमारे चेस्ट में। इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, जैसे ये आपका फेस है, ये आपके शोल्डर्स हो गए। ठीक है, तो स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पे। ठीक है, और इसी स्टर्नम से आपने, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, दीज आर योर रिब बोन्स। ठीक है, दीज आर योर रिब्स, है ना? तो ये रिब्स जो है किससे अटैच हो गई? आपकी स्टर्नम से। ठीक है, और ये पीछे जो है, ये पीछे बैक साइड पे आपका क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम। सो कैन यू मेक आउट अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जब हमने बात किया, तो सी आपका स्कल बोन, राइट, स्कल बोन, है ना, देन आपका पीछे ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, है ना, देन दिस इज योर स्टर्नम। ठीक है, दिस वुड बी योर स्टर्नम, ओके, एंड देन ये इस तरीके से जो बोन्स हैं, दीज आर योर रिब बोन्स। क्या हो गई बच्चों? ये रिब्स। तो कैन यू मेक आउट दैट दीज ऑल आर लाइन इन अ सिंगल लाइन, है ना? सबकी सब कैसे है? सिंगल लाइन में है। तो कैसे लाइन किया? ये अलोंग दी व्हाट, हाउ आर दे लाइन? द लाइन अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, straight line along the longitudinal axis, all right? So 4 पार्ट्स हो गए ना? ठीक है, नाउ गेटिंग माय पॉइंट।
तो स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, यानी कि 206 हड्डियों को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला डिवीजन हमने पढ़ा एक्सियल स्केलेटन। नाउ कम्स योर अपेंडिकुलर स्केलेटन अलोंग दी, ये कैसे होता है, अलोंग दी ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी। कैसे होगा बच्चे लोग, अलोंग दी ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, आया समझ में, ठीक है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी में हम लोग पढ़ेंगे गर्डल, ठीक है। अच्छा, इसको लिख लो, लिख लिया, ठीक है। नाउ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी, ओके, राइट इट डाउन, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। क्या होती है गर्डल्स एंड क्या होते हैं लिम्ब बोन्स, ठीक है बच्चों। लिम्ब यानी कि आपके हाथ और पैर, ठीक है। ये जो मेरे आर्म्स हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये आपकी लिम्स हो गई, ठीक है। वैसे हम लोग इनको क्या बोले, हैंड्स, ठीक है। और जो हमारे लेग्स हैं उनको हमने लेग्स बोला, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब हम चारों को मिला के बोलते हैं, राइट, आर आर्म्स एंड देन आर लेग्स, इनको हमने क्या बोला बच्चों, लिम्स। क्या बोला, लिम्स, ठीक है। और यूजुअली अगर हम बोले इनको हम लोग बोलेंगे फोर लिम्स, इनको हम लोग बोलेंगे हाइंड लिम्स, एनिमल्स के केस में बोलते हैं, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्स। अब गर्डल्स क्या हुए बच्चों, गर्डल्स वो हुए जैसे कि मेरी डिफरेंट बोन्स को जो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स को जो कनेक्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी कॉल्ड योर गर्डल्स, ठीक है ना। जैसे कि मेरा यहाँ पे आर्म खत्म होता है, यहाँ से रिस्ट स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे बोन्स जो कनेक्टिंग है दे वुड बी कॉल्ड एज योर गर्डल्स एज इन जनरल, ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन है ना, नंबर ऑफ बोन्स। अब देखो ये नंबर ऑफ बोन्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अभी हमने देखा कि 206 हड्डियों को हमने कैसे डिवाइड किया, इन एक्सियल स्केलेटन एंड इन अपेंडिकुलर स्केलेटन, ऑलराइट। अब उसमें भी लिम्ब में हमारा ये आर्म है, हमारा लेग है, उसमें भी अलग अलग टाइप की बोन्स होती है, ठीक है। कैसे डिवाइडेड है बच्चों, मोस्ट ऑफ इट इज अ रट्टा वाला पार्ट जिसमें आप आराम से कर लोगे, बट इट्स जस्ट दैट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एंड देन दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर में सबसे अच्छा ये, एक्सियल में तो आप इजीली बता दोगे, स्कल, स्टर्नम, रिब एंड दी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एंड देन अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे आपके लिम्ब, ठीक है, एंड आपकी गर्डल्स, ऑलराइट, बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं द नंबर ऑफ बोन्स के साथ, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने बच्चे लोग, 29। हाउ मेनी, 29, ठीक है। चलो इसको नोट करते रहो। स्कल में सबसे पहले दो पार्ट बना लो, ठीक है, ऐसे ऐसे बना लो या तो, या ऐसे टेबल फॉर्म में बना लो, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में कितने हैं बच्चों, स्कल कितनी बोन्स का बना होता है, 29, ओके। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं, 26, ओके। स्कल में 29, ठीक है, ओके। देन आपकी वर्टिब्रल कॉलम में 26, ऑलराइट। स्टर्नम सिंगल बोन होती है कि ये, ठीक है, स्टर्नम एक सिंगल बोन है तो 1। देन रिब 24 यानी कि 12 के पेयर में होती है। कैसे होती है, 12 के पेयर में होती है, ओके, ठीक है। 12 into 2 is 12 pair is what, that means 12 पेयर मतलब कि एक पेयर में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, दो, ठीक है। तो 12 पेयर है तो मतलब कि 24, यानी कि 12 into 2 are 24. So the total number of bones in ribs are counted as 12, ठीक है। कितना, तो अब जब इन चारों को हमने टोटल किया बच्चा लोग, कितना बोन्स बना, 80। हाउ मेनी, 80, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन जो है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना हो गया बच्चा, 80, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। नाउ सी 4 लिम्ब बोन्स, यानी कि हमारे आर्म्स में यहां से लेके यहां तक कितनी बोन्स हुई, यहां से शोल्डर जॉइंट से लेके फिंगर तक कितनी बोन हुई, 60। हाउ मेनी, 60, ठीक है, 60 बोन्स हुई,
ठीक है, 60 बोन्स यानी कि 30 इन द लेफ्ट आर्म एंड 30 इन द राइट आर्म, ठीक है, दोनों को मिला के कितना बचा 60, ओके। नाउ व्हेन इट कम्स टू आवर लेग, सिमिलरली नीचे भी 60 यानी कि 30 इन द लेफ्ट लेग, 30 इन द राइट वन, ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो अच्छे से इसको यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। गर्डल बोन्स कम्स योर पेक्टोरल गर्डल, बच्चों इसके बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे, ऑलराइट। बस व्हाट यू नीड टू डू इज यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, दैट इज इम्पोर्टेंट। लाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्केलेटन में कितने नंबर ऑफ बोन्स है, नंबर ऑफ बोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ऑलराइट, ठीक है। सो पेक्टोरल गर्डल 4, 2 इन ईच शोल्डर, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल बेसिकली जो हमारा जॉइंट बना रहा है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स हैं बच्चों, टोटल 4, 2 हियर एंड 2 हियर, ओके। सो 2 इन ईच शोल्डर एंड देन द पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल इन योर अब्डोमेन, ठीक है, जहां पे आपका हिप जॉइंट बन रहा है, क्या बन रहा है, हिप जॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे कितनी, 2, ठीक है। तो इस तरीके से अपेंडिकल एंड स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई बच्चा, 126। हाउ मेनी, 126, ठीक है। अब ये 126 और 80 को जब हम प्लस करते हैं कितना निकल के आता है, 206। सी हाउ ब्यूटिफुली नेचर हैज डिवाइडेड बोन्स, है ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इजी हो गया ना, हमने हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है या हमारी बोन्स है उनको जब 2 पार्ट में स्टडी किया, ओके, एक्सियल में ऐसे ऐसे, ठीक है, अपेंडिकुलर में ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि लिम्स में होता है, ओके, ठीक है। तो कैसे कैसे, एक्सियल में 80, 80 एंड अपेंडिकुलर में 126, डिवीजन हमने यहाँ देख ही लिया कैसे, ठीक है। आगे सबको समझ में इजी है ना, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। तो चलो, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट बच्चा, इसको लिख लो, बना लो जी, बना लो, इसको बना लो। हो गया क्या भाई, इजी इजी सा है, ठीक है, लिख लिया। हम आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, दिस इज अ लिटिल बिट थ्योरी अगेन विच आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है। बच्चों देखो बेसिकली हमें बोन्स का रिक्वायरमेंट क्यों है, जस्ट इमेजिन, अच्छा हैरी पॉटर देखी किसी ने, हैरी पॉटर में कौन सा पार्ट होता है वो जिसमें उसका, या हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, राइट, द सेकंड पार्ट इन हैरी पॉटर। सी क्या होता है ना हैरी पॉटर के पार्ट में, उसने जब वो हैरी जो है वो गिर जाता है अपनी ब्रूम स्टिक से, है ना, तो दैट प्रोफेसर, ठीक है, लॉकहार्ट, या पता नहीं ऐसे, आई एम बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर, एक्चुअली पूरी सीरीज मैंने बहुत बार देखी है, ठीक है, आई सो लव हैरी पॉटर, ठीक है। और अगर आप में से किसी को पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, विल बी ना सेम टाइम, है ना, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस बच्चों कि वो जब उसका वो ब्रोकन रिस्ट को जब सही करता है तो क्या करता है, पूरी बोनी गायब हो जाती है, कि ऐसा हाथ कैसे हैंग करता है, ऐसे ऐसे, बिकम सो फ्लेक्सिबल कि उसको टर्न करता है। तो बेसिकली बच्चा लोग इतना हमें समझ आ गया कि अगर हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देना है, ठीक है, क्या देना है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कि अभी हम जैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, वी कैन वॉक, राइट, वी कैन इजीली वॉक, वी कैन डांस, वी कैन डू एनीथिंग, आवर बॉडी हैज गॉट अ डिफाइनाइट शेप, राइट। तो इस सब के लिए हमारी बोन्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बोन्स, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क कौन दिया हमको, बोन्स दिया, राइट, है ना। सो इसी से हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है बच्चा लोग, सपोर्ट, शेप एंड सपोर्ट, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे समझ में क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। सो लेट्स सी व्हाई डू वी नीड अ स्केलेटन, हमें स्केलेटन की या फिर बोले कंकाल की, हड्डियों के इस ढांचे की जरूरत क्या है भाई, ऐसी क्या जरूरत है। तो हैरी पॉटर के एग्जाम्पल से इतना तो समझ में आ गया है ना। और सुनो, जो जिसको भी हैरी पॉटर पसंद हो प्लीज मुझे बताना किस किसको पसंद है भाई, ठीक है। तो एक ही डायरी में हम लोग रहेंगे, ऑलराइट। मेरी टीम में वो लोग जिनको हैरी पॉटर पसंद है, ठीक है, और जिनको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, स्टिल आई लव ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो अब देखो, व्हाई डू वी नीड अ स्केलेटन बच्चों। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो, इट सपोर्ट्स आवर बॉडी, क्रिएट्स रूम फॉर द लंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब बच्चों
इट सपोर्ट्स आवर बॉडी, इजंट इट? हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एक जगह फिक्स्ड है, किसकी वजह से फिक्स्ड है? बिकॉज ऑफ द बोन्स, इजंट इट? है ना? वरना पता चलता हार्ट यहाँ की जगह नीचे पहुंच गया है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, नीचे कोई बोन ही नहीं है भाई, वो तो कहीं तो मर्जी पड़े, इधर उधर घूम रहा है, उधर से उधर घूम रहा है ना? ऐसा नहीं होता है, राइट? क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारी बॉडी में जो है एक फ्रेमवर्क है, इजंट इट? देन इट अलाउज अस टू मूव, राइट? आई एम वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, ऑल द एनिमल्स डू वॉक, किसकी वजह से? बोन्स की वजह से भाई, है ना? देन प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी पॉइंट, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन कैसे? देखो बच्चों, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, ठीक है, जो होता है कहाँ है? रिब्स के बीच में होता है ना, रिब्स के जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, राइट? तो यहीं पे हमारा क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्या हुआ? हमारे लंग्स हो गए दोनों साइड में, यहाँ पे हमारा क्या हुआ? लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे हार्ट हुआ, है ना? तो बेसिकली क्या कर रहा है ये? बेसिकली क्या कर रहा है ये हमें हेल्प आउट कर रहा है इन, इट इज हेल्पिंग आउट इन प्रोटेक्टिंग आवर वाइटल ऑर्गन, इजंट इट? बोन्स के पीछे प्रोटेक्टेड है ना? मान लो हम जैसे अभी ऐसे गिर गए कहीं पर धक्का खा के, राइट? मान लो लाइक बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट और व्हाटएवर इट इज, इंजरी, आई फेल डाउन, है ना? एंड देन आई सडनली गॉट अ जर्क और मे बी कुछ चोट लगा मुझे, कहाँ पे? यहाँ, ठीक है? अगर मेरा स्टर्नम नहीं होगा वहां पे, तो अल्टीमेटली मेरे लंग्स क्या है? एक्सपोज्ड, इजंट इट? So what these bones are doing is they are protecting my vital organs, isn't it? है ना? कितना अच्छा काम करें, ठीक है? Then why is the skull so thick? Why do we need ribs to protect lungs and our heart? ठीक है? स्कल हमारे हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा जो काम वाला पार्ट है, दैट इज योर ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करता है ना? ठीक है? क्यों? जो देखो यही बोलता रहता है, दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो, है ना? तो भाई दिमाग से काम कब लेंगे? जब वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है? समझ रहे हो आप? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है? सो योर ब्रेन जो है, योर खोपड़ा बेसिकली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इज प्रोटेक्टेड बाय वो कल, है ना? इसीलिए बहुत थिक होता है, टक 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 टक, देखो ये बोलता भी अंदर से ना, यू कैन फील दैट बोथ, वेरी थिक बेसिकली, वाई? बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा वाइटल है बच्चों, बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है? बट देन अगेन क्या होता है? बहुत सेंसिटिव है ना? चोट नहीं लगे, इसलिए हमारा जो स्कल है प्रोटेक्ट करता है उसको, ऑलराइट? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? अब देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन मेन पॉइंट जो है बच्चों, इनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, राइट? स्केलेटल सिस्टम क्या बनाता है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है ना? तो अब देखो हमारी बॉडी में काफी वैरायटी ऑफ बोन्स होती है बच्चों, राइट? बहुत बड़ी भी होती है, बहुत छोटी भी होती है, ठीक है? तो होता क्या है? मेनी बोन्स विद मेनी जॉइंट्स इनेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है? यानी कि हर एक बोन का अपना एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, गेटिंग माई पॉइंट, राइट? ठीक है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है? दे आर इनेबलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी, इसी वजह से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, कार्टिलेजेस एंड जॉइंट्स, ठीक है? बोन्स इंपॉर्टेंट है, दो बोन्स के मिलने से क्या बन रहा है? आपका जॉइंट बन रहा है ना? अब अगर here I have an elbow joint, that is why I'm able to move my elbow like this, isn't it? I have a shoulder joint, ठीक है? यानी कि मेरा यहाँ पे जो आर्म है that is attached to these bones, ठीक है? And that is why I'm able to move my hand this way. So see, basically हमारी बॉडी में मूवमेंट किसकी वजह से हो रहे हैं बच्चों? Because of your bones, cartilages and joints, okay? So now moving to the next, what are the functions of our skeletal system? ठीक है? Important theoretical, ठीक है? जरूरी है theoretical question हमारा, that it provides a fixed shape and support to the body, evident है ना? बताया ना मैंने अभी आपको एग्जांपल हैरी पॉटर वाला दिया था, फिक्स शेप हमें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, राइट? दैट इज व्हाट आवर स्केलेटल सिस्टम इज ऑल अबाउट, है ना? देन मेनी पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन लाइक रिब केज, बेसिकली व्हाट इज रिब केज बच्चों? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस कंकाल ओवर हियर? डरावना नो ऐसे दिख जाए, वो हॉरर मूवीज में होता है ना, कभी कभी तो यही चलते हुए दिखता है, राइट? भगवान ना करे किसी को दिखे ऐसा, राइट? तो एनीवे दिस इज फॉर द एक्सप्लेनेशन गाइस। यहाँ देखो ये दिख रहा है पूरा का पूरा, ये देखो, अच्छा यहाँ पे वी कैन इजीली मेक आउट, सी ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा क्या हो गया? एक्सियल स्केलेटन, है ना?
एक्सियल स्केलेटन, फटाफट क्विक रिवीजन, 80 बोन्स ऑल ओवर, राइट। देखो लिखा हमने यहाँ पे 80 बोन्स, है ना, 80, राइट। तो एक्सियल स्केलेटन के पास हमने क्या देखे थे बच्चों, स्कल, ये रहा आपका, ठीक है, फटाफट से यहाँ देख लो, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा आपका स्कल, ठीक है। उसके बाद हमने एक ही क्या देखा था, एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, राइट। देन हियर इज द स्टर्नम, ये देख रहे हो इतना का पार्ट जिससे कि आपकी क्या है, रिब्स अटैच है। सो दिस इज योर स्टर्नम, STERNUM, ठीक है। अब ये देखो यहां से लेके यहां तक, पूरा यहां तक, ये क्या है बच्चों आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो देख पा रहे हो एक ही लाइन में है ना, ठीक है। तो इसीलिए तो क्या बोला हमने, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, एक ही लाइन में, ठीक है। एंड उसके अलावा आपका क्या बचता है, ये रहा पूरा, ये रहा पूरा रिब केज, ये पूरा पूरा जो सर्कल मैंने बनाया, व्हाट इज इट, दिस इज योर रिब केज, ठीक है। फिर आपका अपेंडिकुलर सिस्टम जो है वो गर्डल से बनाया। यहाँ पे ये रहा आपका पेल्विक गर्डल, ये आपके लिम्स है ना, ये फोर लिम्स, ये हाइंड लिम्स, और यहाँ पे आपका ये पेक्टोरल गर्डल, और नीचे ये रहा आपका पेल्विक गर्डल जो कि दो बोन से बना, एक तो ये रही, ठीक है, और एक ये रही, ठीक है। और यहाँ पे आपके दो पेक्टोरल गर्डल, एक पेल्विक गर्डल, ठीक है। आ गया समझ में। तो देखो इसमें भी हमने देख लिया ना। अब यहाँ पे आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, मेनी पार्ट्स ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम लाइक द रिब केज एंड ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स क्या होता है बच्चों, आपका ये स्कल जिसके अंदर आपका ब्रेन होता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रेन बॉक्स, दैट इज योर स्कल, ओके। एंड रिब केज, दिस, ये एंटायर फ्रेमवर्क है ना, ठीक है। तो रिब्स बेसिकली क्या होती है बच्चों, आगे से स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके आई कैन नॉट जूम इट, एनीवेज अगर यहाँ देखोगे तो देखो एक तरफ आगे स्टर्नम से जुड़ी है और पीछे की तरफ किससे जुड़ी है, ये वर्टिब्रल कॉलम से। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज मेकिंग इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अंदर से क्या होता है, हॉलो, है ना, अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो दे प्रोटेक्ट सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। मैंने आपको बताया था ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या हुआ, स्कल के अंदर क्या हुआ, आपका ब्रेन सॉफ्ट है, डेलिकेट ऑर्गन है। सिमिलरली रिब्स हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो ठीक है, हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन द ब्रेन, इन द रिब केज, वेयर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन द ब्रेन बॉक्स, ऑलराइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट, लिख लो जी, लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो। ठीक है बच्चा लोग, इजी है ना। देखो कितना कितना फन और इंटरेस्टिंग है, राइट, है ना, फन और इंटरेस्टिंग, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जी। अब आता है आपका नेक्स्ट इज दैट, अब इसका क्या फंक्शन है बच्चों, दैट विद दी sorry, yeah, with the help of muscles that allows the movement of body parts and locomotion. Yes, bones हमारी जब मसल्स के साथ मिलती हैं, राइट, जो हमारा, मैंने आपको बताया था बेसिक थिंग, राइट। तो बोन्स हमारी जब मसल्स के साथ मिलती हैं तो क्या होता है, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन, ठीक है, आ गया समझ में। देन इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, ऑफकोर्स जब भी बात आती है स्ट्रेंथ टू द बॉडी, स्ट्रक्चर टू द बॉडी, फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हमेशा हैरी पॉटर वाला वो पार्ट हम याद रखेंगे, ठीक है, ओके। नाउ कार्टिलेज क्या होता है, देखो द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज नोन एज योर स्केलेटन, ठीक है। द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, स्केलेटन की अगर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे बच्चा लोग, प्लीज इसको लिख लो, skeleton, what is the definition for your skeleton, that is the structural framework of body made of bones and cartilage is known as a skeleton. Come on, write it down, जल्दी जल्दी लिख लो। चलिए जी आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। मेन पार्ट, ठीक है बच्चों, हमने देखा था कि दो मेजर पार्ट में, ठीक है, कितने पार्ट में,
दो मेजर पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था, है ना। अब एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या इंक्लूड किया हम लोगों ने, देखो पहला तो द स्कल, पूरा ये स्कल है ना, इंक्लूडिंग दी अपर जॉ। सी, दिस इज माय अपर जॉ, यहां से लेके यहां तक दिस द अपर जॉ, एंड देन दिस इज माय लोअर जॉ, दिस इज माय लोअर जॉ एंड दिस इज माय अपर जॉ। यहाँ पे ये इतना पार्ट मेरा अपर जॉ है, ठीक है, ओके, एंड दिस इज माय लोअर जॉ। तो इंक्लूडिंग, अगर मैं अपनी स्कल की बात करती हूँ, ठीक है, किसकी बात करती हूँ, स्कल की, तो इसमें क्या क्या है, एक तो ये स्कल है, दूसरा इट इंक्लूड्स माय अपर जॉ एंड माय लोअर जॉ, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। एंड देन दी बैकबोन, जो ये बैकबोन है हमारा पूरा vertebral column which is also called as the backbone, okay, and the rib cage, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने देख लिया था पूरा, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको बनाऊं, आपको यहाँ पे समझाऊं थोड़ा सा, हाउ वुड इट गो बच्चा, वेट, एक अच्छा खासा कलर सेट कर लेते हैं, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, या ये देखो, ये आपका ये बना हुआ पूरा एक स्कल, ये आपका लोअर जॉ हो गया, जिसमें क्या है, लोअर टीथ। अपर जॉ में क्या है, अपर टीथ, ये वाला, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका ये स्कल है वो तो अलग है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, द स्कल इंक्लूडिंग योर अपर एंड लोअर जॉ, द बैकबोन एंड द रिब केज, एंड ऑल्सो आप इसमें क्या लिख सकते हो, एक स्टर्नम भी लिख लो, एक और लिख लो, विच इज योर स्टर्नम, ठीक है। इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, है ना। इसको लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, तो हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे, ओके। हो गया क्या जी, हो गया, आगे बढ़े, ओके। चलो, ये वैसे हमने वहां लिख लिया था। अब देखो, सबसे पहले आता है बच्चों स्कल, हाउ स्कल, स्कल को हमने क्या बोला, ब्रेन बॉक्स, क्या बोला बच्चों, ब्रेन बॉक्स, क्यों, बिकॉज इट हाउसेज द ब्रेन, व्हाट इट डज इज योर हाउसेज द ब्रेन, ठीक है। और एक तो ये ब्रेन को ले रहा है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि इसमें फेस की, नोज की, जॉज की बोन्स भी होती हैं, ठीक है, फेस की बोन्स, ठीक है, फेस की बोन्स, आपकी जॉज आ गए उसमें, ठीक है, नोज आ गई, आपका आई सॉकेट आ गया, आई बॉल सॉकेट आ गया, ठीक है। तो सी, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हो गया आपका, और इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोन्स ऑफ फेस, नोज एंड जॉज एक्सेट्रा। फिर आती है आपकी बैकबोन, दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोला बच्चा, इसको क्या बोला हमने, ठीक है, इसको क्या बोला हमने, बैकबोन और दी, ये देखो, वाह, सॉरी जी सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम, देख रहे हो यहाँ पे, इसको देखो। अब बच्चों इसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं विच वी नीड टू नो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन, एंड दैट इज that it is S-shaped bone। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे आपके ओलंपियाड में भी और आपके दूसरे एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, दूसरा बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम में बता दिया। तीसरा बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कितनी बोन्स होती हैं बच्चों इसमें, हाउ मेनी बोन्स आर देयर, यू गॉट योर 33, हाउ मेनी 33, एंड क्या शेप रहेगा इनका, दे आर योर रिंग शेप्ड बोन्स। व्हाट काइंड ऑफ शेप डू दे हैव, इज योर रिंग शेप बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से बनी होती है, गेटिंग माय पॉइंट, देख रहे हो, है ना, रिंग शेप हो गई, इस तरीके से आपका वर्टिब्रल कॉलम में सारे के सारे बोन्स होते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है ना कि अपर साइड पे, ठीक है, अपर एंड पे अगर मैं यहाँ से बताऊं, ठीक है, यहाँ से, तो कुछ बोन्स ऐसी हैं यहाँ जो कि किससे अटैच है, ठीक है, हमारे स्कल से अटैच है, ठीक है, किससे अटैच होती है, स्कल से अटैच होती है, ठीक है। तो ऑन दी अपर साइड द बैकबोन, अपर साइड में जो बैकबोन है that remains joined with the skull, okay, write down these points, write down, इजी है ना। बैकबोन को हमने क्या बोला, वर्टिब्रल कॉलम पहला, दूसरा एस शेप, ओके, सी, कैन यू सी दिस ट्विस्ट, ट्विस्ट कमरिया टाइप, है ना, ठीक है। तो कैसा होता है, एकदम ऐसा ट्विस्ट होता है, इसमें एस शेप का कर्व होता है, ओके, ठीक है। अरे गाना मत लिख देना अपने एग्जाम में, ये तो मैंने सिर्फ बताया ऐसे ही, ठीक है, एस शेप, है ना। दूसरा
क्या होता है, रिंग शेप्ड होती है बोन्स। कैसी होती है, रिंग शेप्ड। और वर्टिब्रल कॉलम की हर एक जो बोन होती है ना बच्चों, ठीक है, जो हर एक ये रिंग शेप बोन है ना, ये जो रिंग शेप बोन है ना, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, हर बोन को बोलते हैं वर्टिब्रे। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे और वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्रे, ठीक है, यहाँ लिखा है या। एंड दीज 33 रिंग शेप बोन्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रे, ठीक है, क्या बोलेंगे, हर एक को पर्टिकुलर वर्टिब्रे, ठीक है ना। अब बच्चों अगर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट हाइलाइटर, ओके। तो देखो यहाँ पे ना बच्चों आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है, हालांकि इसमें 33 बोन्स हैं, सारी की सारी रिंग शेप्ड होती हैं, ठीक है, लेकिन इनका सबका नाम क्या है, अलग अलग है। ऑलराइट, सी, so it is basically divided into 5 types of bones, ठीक है। पहला है आपका सर्वाइकल, क्या बोलेंगे, सर्वाइकल। सर्वाइकल पेन के बारे में सुना है, ठीक है, सर्वाइकल पेन के बारे में सुना है। सर्वाइकल जो है दैट इज एग्जैक्टली हियर, बिल्कुल अपर आपके यहाँ पे नेक रीजन में जो बोन्स है, ठीक है, दैट वुड बी योर सर्वाइकल। कभी सुना होगा ना कि हमें को सर्वाइकल पेन है, मम्मा पापा या फिर किसी भी एल्डर का, यू माइट हैव हर्ड, यू नो, सर्वाइकल पेन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दीज, गेटिंग माय पॉइंट। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया वर्टिब्रल कॉलम का, योर सर्वाइकल बोन्स, देन कम्स योर thoracic, ओके, thoracic, thoracic would be from here to here somewhere. Exactly I cannot tell you, but एक एक आइडिया मैं आपको बता रही हूँ exactly कहाँ, ठीक है। thoracic, then would be your lumbar and then sacrum and then coccyx। क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन पार्ट्स को, ठीक है, so you can write it down। First would be your cervical, ठीक है, then उसके बाद कौन सी आती है, thoracic, ठीक है, देन उसके बाद कौन सी आती है, लंबार। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, है ना। बोलेंगे अल्टीमेटली बच्चों अपन सबको क्या, वर्टिब्रे ही बोलेंगे, दे आर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बट देन अगेन दीज आर डिफरेंट पार्ट्स इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। हर कोई बोन थोड़ी सी क्या होती है ना, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है, लेकिन वो और ज्यादा डीपर लेवल पे हम नहीं जाएंगे, हमें बस इतना पता रखना है दैट ओके ये ऐसे होता है, ठीक है। देन वुड बी योर सैक्रम एंड देन वुड बी योर कॉक्सिक्स, ठीक है। इसको लिख लो बच्चे लोग, एज इट इज लिख लो। ऑलराइट, आई होप इट्स डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब अपन पढ़ेंगे रिब केज के बारे में। सीधे कितना ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ टीटीवी ने आपके लिए, राइट, सीधे, ओके। रिब केज सबसे पहले, ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, द बैक ऑफ द रिब केज इज फाउंड बाय द बैकबोन। आई टोल्ड यू, आगे स्टर्नम से अटैच है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। कैन यू मेक आउट, सी दिस इज योर स्टर्नम, है ना। तो देखो ये सारी रिब स्टर्नम से अटैच है, आगे है कि नहीं, देखो, है ना। और पीछे की तरफ किससे अटैच है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम से। ऑलराइट, इसीलिए क्या बनना चाहिए, केज लाइक, है ना, यहां से स्टार्ट किया और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से क्या हुआ, अटैच, ठीक है। So the back of the rib cage is formed by backbone. Sorry, it's not looking good. चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। So the back of the rib cage is formed by backbone, ठीक है, and in front of it there is a flat bone, ठीक है। और आगे कौन सी होती है, फ्लैट बोन, कौन सी, that is called as your sternum। फ्लैट बोन यहाँ पे किसको बोला गया, स्टर्नम को बोला गया, ठीक है। अब बच्चों हमने एक चीज पढ़ा था कि जो रिब जो होती है, दे आर 12 पेयर्स, राइट। हाउ मेनी आर दे आर 12 पेयर्स, दैट मींस दे आर 24 इन नंबर। हाउ मेनी, दे आर 24 इन नंबर। कैसा अपीयरेंस होगा बच्चा लोग, प्लीज नोट द अपीयरेंस, दैट इज योर 12 हॉकी स्टिक लाइक बोन्स, ठीक है, जिसको बेसिकली हमने कैसे डिनोट किया, हॉकी स्टिक लाइक बोन्स, ऑलराइट। अब हमने पढ़ लिया था कि कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, आपका हार्ट हो गया, दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड, राइट, प्रोटेक्टेड। सम वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स प्रोटेक्टेड, या व्हिच वी हैव स्टडीड अर्लियर, ठीक है। इसको लिख लो।
राइट इट डाउन बच्चों, राइट इट डाउन. अब बच्चों यहाँ पे एक हमें चीज नोट करने की है. ठीक है, वो क्या है कि ट्रू रिब्स क्या होती हैं एंड फॉल्स रिब्स क्या होती हैं. ऑल राइट, तो देखो सबसे पहले जो ट्रू रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स इतना याद रखोगे जो मैं बता रही हूँ, एंड फॉल्स रिब्स क्या होती है. ठीक है बच्चों, फॉल्स रिब्स में आता है आपका. ओके, आई होप यू गाइज मस्ट हैव रिटन दिस थिंग. ठीक है, पहले इसको लिख लो अच्छे से, ये मत छोड़ना. ठीक है, ठीक है बच्चों, जो ट्रू रिब्स तो आपको देखो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज एविडेंट राइट नाउ. फॉल्स रिब्स, द इंपॉर्टेंट वन इज योर फॉल्स रिब्स. ठीक है, सो द सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ, विच वन? सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ पेयर. ठीक है, सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ पेयर ऑफ रिब्स. ठीक है, कौन सा? ये देखो तीन है ना, एक दो तीन. यहाँ पर भी सिमिलरली एक दो तीन. So the seventh, eighth and ninth pair of ribs, they are called as your false ribs. क्या बोलेंगे? Seventh, eighth and ninth pair of ribs. ठीक है. ऑलराइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. सो आई होप बच्चों आज का जो लेक्चर था that was interesting, isn't it? ठीक है, so yes, आई होप दैट ये आपको समझ में आया. आज का जो भी लेक्चर था, आई होप दैट, आई रियली होप कि आप लोग को मजा आया होगा, बिकॉज सी दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इट्स ऑफ माई पर्सनल इंटरेस्ट. मुझे बहुत बहुत पसंद है हड्डियों के बारे में स्टडी करना, बिकॉज एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों. देन यू नो व्हाट, यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर ओन बॉडी, इजंट इट? कि ओ गॉड, 206 बोन का डिवीजन कैसे किया हुआ है, इजंट इट? राइट. So yeah, this is the similar case. So I really hope कि आपको समझ में आया होगा. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट जो भी मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए, whatever the important points were, प्लीज उसको अच्छे से एक बार जाके आप क्या करोगे, अपनी आंखों के नीचे निकाल लोगे फटाफट. जैसे क्या, अरे हमने वर्टिकल कॉलम में क्या पढ़ा था कि एस शेप्ड होता है, रिंग शेप्ड होती है, मतलब ना एस शेप का पूरा उसमें कर्व होगा, रिंग शेप्ड होती है. कि वर्टिब्री क्या होती है? रिंग शेप्ड होती है ना. तो इस तरीके से आप जो है क्या करोगे, उसको फटाफट फटाफट देखोगे ना, तो मल्टीपल चॉइस जब सॉल्व करोगे अपने एग्जामिनेशन की, तो क्या होगा, इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा. राइट. तो एंड देन जब स्टेप बाय स्टेप चलोगी ना बच्चों, तो इस चैप्टर को पढ़ने में और मजा आएगा, ट्रस्ट मी. ठीक है, बाकी रेस्ट इज अश्योर्ड दैट बायोलॉजी इज गोना बी सुपर डुपर एक्साइटिंग एंड फन. ओके, so yes, I never say forcefully, but of course, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, if you like me, if you like the way I teach biology, if most important, you're enjoying biology, okay, do hit that like button, उसको hit कर देना अगर आपको अच्छा लगा है तो. प्लस यार सब लोग अलग अलग जगह कमेंट्स करके बताते हो, लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग प्रिटी एंड ऑल, है ना, दूसरों के पिक्चर्स पे पिक्चर अच्छा है, अच्छा है. तो अभी हम यहाँ पढ़ाई की बात कर रहे हैं. तो whatever you felt about this lecture, whatever it is, please comment section में बताओ that how did you like it, और exactly what exactly you felt. ठीक है, मजा आया नहीं आया, जो कुछ भी है, be honest and just बताना. ठीक है, I'm always looking forward to your comments, and also you subscribe to the channel of Talking Textbook. ठीक है, you know कि TTB का प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. राइट. So yes, do hit that subscribe button, and also ये जो बेल आइकन है इसको टन टन कर देना, इसको हिट कर देना, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं. राइट. सबको पता है यूट्यूब के फीचर के बारे में, है ना. आई डोंट नीड टू स्पीक मच. देन मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल योर लवली किड्स आउट देयर. Loads of love to you, blessings to you. ठीक है, पढ़ते रहो, and rest assured, together we'll definitely make biology extremely fun, exciting, and of course super duper easy. ठीक है, फन एंड एक्साइटिंग तब होगा जब आप और हम साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे. इजी बनाना मेरे हाथ में, बट देन अगेन किसको साथ देना है? आप लोगों को. ठीक है, सो यस, आई डॉक्टर गीतांजलि शर्मा हियर, आई टेक ऑफ फॉर टुडे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में वापस आते हैं. ठीक है, वापस से थोड़ा फन एक्साइटिंग मस्ती करेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, बट ऑफ कोर्स इन अ फन वे. दैट्स हाउ टीडीबी इज ऑल अबाउट, है ना. So I'll see you later. So do take care of yourselves and your families, okay? And I'll see you later. Bye bye. Take care.